السلام علیکم۔ BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات سے پہلے دیکھتے ہیں ہیڈ لائنز۔ 27 سپٹمبر تک تلنگانہ بھر میں ہو سکتی ہے بارشیں۔ گزشتہ روز حکیم پیٹ میں دیوار گرنے سے کئی گاڑیاں شدید نقصان کا شکار۔ DRF نے بزرگوں و حاملہ خواتین کو محفوظ مقامات تک پہنچایا۔ مجالس مقامی انتخابات میں 42% تحفظات کے لیے جلد ہی جیو کی اجرائی کا امکان۔ حکومت نے تمام تیاریاں کر لی مکمل۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ضلع ملگو کا کیا دورہ اور میڈارم جاترا کے انتظامات کا لیا جائزہ۔ سمکا مندر میں کی پوجا، 66 کلو کے سونے کے زیورات کیے پیش۔ ہائیڈرا نے 50,000 کروڑ روپے مالیتی 923 ایکڑ اراضیات کا تحفظ کیا، قبضے کیے برخاست۔ کمشنر ہائیڈرا AV رنگناتھ کی پریس کانفرنس۔ حیدرآباد پولیس نے گاڑیوں کے سٹیکرز TS سے TG میں کر دیے تبدیل۔ پالشنگ، ڈینٹنگ و پینٹنگ، کل 188 گاڑیوں پر 1.6 کروڑ روپے خرچ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد میں مسلسل بھاری بارشوں سے پرانے شہر کے کئی نشیبی علاقے شدید متاثر۔ سڑکیں اور گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ خلیج بنگال میں نیا لو پریشر ایریا بننے کی وجہ سے 27 سپٹمبر تک تلنگانہ میں بارش اور تیز ہوائیں جاری رہ سکتی ہیں۔ حیدرآباد شہر میں پیر کی شب اور منگل کو مسلسل بھاری بارشوں نے عوامی زندگی کو مفلوج کر دیا۔ پرانے شہر کے ٹولی چوکی، حکیم پیٹ اور دیگر نشیبی علاقوں میں برساتی نالے ابل پڑے، جس کے نتیجے میں پانی کے ریلے سڑکوں پر دوڑتے نظر آئے۔ حکیم پیٹ میں ایک دیوار منہدم ہونے سے کئی گاڑیاں بری طرح نقصان کا شکار ہو گئی۔ ٹولی چوکی کی بستیوں میں پانی کا زور اتنا شدید تھا کہ آٹو رکشے، بائکیں اور یہاں تک کہ کاریں بھی کاغذی کھلونوں کی طرح بہہ گئی۔ ایک مقام پر آٹو رکشہ بجلی کے کھمبے سے ٹکرا بھی گیا، جس کے بعد چنگاریاں بھڑک اٹھی اور مقامی افراد خوف زدہ ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صرف ٹولی چوکی کے علاقے میں پیر کے دن 107 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح بنجارا ہلز میں 106.3 ملی میٹر، خیرتآباد میں 100 ملی میٹر، شیخ پیٹ میں 10.6 سینٹی میٹر اور امیر پیٹ و مشیرآباد میں 6 سے 7 سینٹی میٹر کے قریب بارش ریکارڈ کی گئی۔ شدید بارشوں کے بعد جوبلی ہلز میں KBR پارک کے تالاب لبریز ہو گئے اور پانی سڑکوں پر بہنے لگا۔ اس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے GHMC کی میئر گدوال وجے لکشمی اور ہائیڈرا کمشنر AV رنگناتھ نے موقع کا معائنہ کیا۔ عہدیداروں نے واٹر لاگنگ کا مستقل حل نکالنے اور ڈرینیج و پائپ لائن کے کام کو تیز کرنے کی ہدایت جاری کی۔ دوسری جانب ڈیزاسٹر رسپانس فورسز DRF کی ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بنجارا ہلز کالونی، حیات نگر اور دیگر متاثرہ مقامات سے بزرگوں اور حاملہ خواتین کو محفوظ مقامات تک پہنچایا۔ ریاستی محکمہ موسمیات IMD نے خبردار کیا کہ خلیج بنگال میں بننے والے نئے لو پریشر ایریا کی وجہ سے 27 سپٹمبر تک تلنگانہ بھر میں بھاری بارشوں کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ خاص طور پر وقار آباد، سنگا ریڈی، میدک، کاما ریڈی، سدی پیٹ، رنگا ریڈی، محبوب نگر اور نارائن پیٹ جیسے اضلاع میں 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کے امکانات ہیں۔ یادادری ضلع میں نالوں کے ابلنے سے نارائن پیٹ کے سنستان نارائن پور علاقے میں ایک پولٹری فارم پانی میں ڈوب گیا، جس سے کسانوں کو بھاری نقصان برداشت کرنا پڑا۔ حیدرآباد پولیس اور GHMC نے عوام سے اپیل کی ہے کہ بارش کے دوران گھروں سے غیر ضروری طور پر نہ نکلے، نشیبی علاقوں سے دور رہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر ہیلپ لائن سے رابطہ کرے۔
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मजालिस मुकामी इंतखाबात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने आइंदा 2 दिन में जियो जारी किया जा सकता है। कहा गया है कि हुकूमत ने इस सिलसिले में तैयारी कर ली है। असेंबली में बिल मंजूर करके गवर्नर को रवाना किया गया था, ताहम इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। हुकूमत इस पर अब जियो जारी करने की तैयारी कर रही है। जिलेवारी सतह पर ओहदेदारों से कहा गया है कि वो इस सिलसिले में तैयारियां पूरी कर लें। महकमा BC वेलफेयर को हिदायत दी गई है कि इस सिलसिले में इब्तिदाई जियो जारी किया जाए, जिसके बाद इस पर अमलावरी के लिए महकमा पंचायत राज से अहकाम जारी कर दिए जाएंगे। जिले कलेक्टर्स ने MPTC, ZPTC और मंडल परिषद व सरपंच निशिस्तों की निशानदेही का अमल तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। जियो जारी होने के फौरी बाद तहफ़्फ़ुज़ात का फौरी तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात का खुरा अंदाजी के जरिए ऐलान किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज जिले मुलुगु का दौरा किया और वहां उन्होंने मेडारम यात्रा के इंतजामात का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर मेडारम यात्रा के सिलसिले में समक्का सारालम्मा मंदिर का दौरा भी किया और वहां उन्होंने पूजा की। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने जुमला 68 किलो के सोने के जेवरात मंदिर में पेश किए। चीफ मिनिस्टर की आमद के मौके पर मंदिर के पुजारियों ने इनका इस्तकबाल किया और रवायती तौर पर प्रसाद वगैरह पेश किए। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर जिले मुलुगु में मेडारम यात्रा के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया और उन्होंने ओहदेदारों और मुतालिका हुकाम को हिदायत दी है कि इस यात्रा के लिए इंतजामात में हुकूमत की जानिब से कोई कसर बाकी नहीं रखी जानी चाहिए और इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि यात्रा में शिरकत करने वाले यात्रियों की सहूलत के लिए भी मौसर इंतजामात किए जाने चाहिए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो तेलंगाना राइजिंग कोर अर्बन सिटी इलाके को जामा मंसूबे के साथ तैयार किया जाना चाहिए ताकि ये इलाका एक आलमी शहर की शनाख्त बन सके। उन्होंने तमाम मुतालिका महकमा जात के आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनअक़िद किया और इन्हें ज़रूरी हिदायत जारी की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो तालीम, निगहदाश्त, सेहत, रोड ट्रांसपोर्ट और सफाई को अव्वलीन तरजीह दे, जिनके जरिए अवाम की सेहत का ख्याल रखा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि बेहतर सेहत बेहतर मियार जिंदगी का पैमाना है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि शहरी तौसी के तौर पर रियासत के मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ रियासतों से लाखों खानदान नक्लो मकान कर रहे हैं और बढ़ती आबादी के मुताबिक आलमी मियार का बुनियादी ढांचा फराहम किया जाना चाहिए। इसके लिए जामा मनसूबा बंदी जरूरी है। चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद को एक आला मियारी शहर बनाने के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और पहले से जारी मनसूबों का भी जायजा लिया और ओहदेदारों से कहा कि वो नई तजावीज़ तैयार करके हुकूमत को पेश कर दे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों के साथ रियासत में सड़कों की देखभाल और बेहतरी के उमूर का जायजा लिया। इजलास में रीजनल रिंग रोड के शुमाली और जनूबी हिस्सों में रिडेल सड़कों की तामीर के अलावा अजला में ज़ेर इल्तिवा सड़कों के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो रीजनल रिंग रोड से मुताल्लिक़ तमाम ज़ेर इल्तिवा हुसूल अराजी के कामों को अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल कर ले और जिन अफराद की जायदाद मुतासिर हो रही हैं इन्हें फौरी मुआवजा अदा किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों से कहा कि हैदराबाद ता बंदर पोर्ट ग्रीन फील्ड हाईवे रूट का नक्शा भी जल्द अज जल्द तैयार किया जाए और हैदराबाद सिरसेलम हाईवे पर एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत से फौरी मंजूरी हासिल करके इक़दामात किए जाएं। चीफ मिनिस्टर ने कौमी शाहराहों की तामीर के मसले पर जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी मुनअक़िद की और तमाम कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने इक़दामात का मशवरा दिया। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने आज मंचिर्याल जिले का दौरा करते हुए वहां बतकमा त्योहार की तकरीबात में हिस्सा लिया। कविता जब मंचिर्याल के लिए रवाना हुई तो रास्ते में कई मुकामात पर तेलंगाना जागृति के कारकुनों और खैर खाहों ने इनका इस्तकबाल किया और मुलाकात की। कविता ने मंचिर्याल जाते हुए गोदावरी खनी में मुकामी तेलंगाना जागृति कारकुनों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलाए अकीदत पेश किए और डॉक्टर अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश किया। मुकामी कारकुनों से मुलाकात करते हुए कविता ने इन्हें समाजी इंसाफ के लिए जद्दोजहद जारी रखने का मशवरा दिया और कहा कि अवाम की खिदमत में कभी कोई कसर बाकी नहीं रखनी जानी चाहिए। बादशाह कविता ने मंचिरियाल जिले के श्रीरामपुर पहुंचकर वहां बतकम्मा त्योहार से मुताल्लिक़ तकारीब में हिस्सा लिया। सिंगरेनी जागृति के कायदीन भी इस मौके पर कविता के साथ मौजूद थे। बीआरएस पार्टी ने रियासत में एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात के अदम इनेकाद पर रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इख्तिदार के 20 माह गुजरने के बावजूद रियासती हुकूमत इंतखाबात करवाने के मौकूफ में नहीं है। बीआरएस लीडर के मलेश ने आज तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत की नाअहली की वजह से देही इलाकों के अवाम को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि रियासत में हालांकि पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीमती सीतक्का वजीर हैं, लेकिन वो भी एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात के लिए हुकूमत पर दबाव डालने में नाकाम है। वो बुलंद बांग दावे करती हैं, लेकिन इंतखाबात के मसले पर खामोशी इख्तियार कर लेती हैं। मिस्टर मलेश ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत लगातार ये देही इलाकों की तरक्की को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसके बावजूद सीतक्का हुकूमत के साथ हैं। इन्हें हुकूमत से इस्तीफा पेश करते हुए अवाम की आवाज बुलंद करने पर तवज्जो देनी चाहिए। ఇయాల గ్రామ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రిగా అడవి బిడ్డ సోదరి సీతక్క గారు మీరు అన్ని మాటలు చెప్తా ఉర్రు 20 నెలలు దాటిపోయింది ఎన్నికలు జరగక, కనీసం ఎన్నికలు పెట్టలేనటువంటి అసమర్థ మంత్రిగా మిగిలిపోయే బదులు ఆ శాఖను వదులుకొని రాజీనామా చేస్తే ప్రజలు హర్షిస్తారేమో అనే విషయాన్ని ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ మూల సిద్ధాంతం గ్రామీణ ప్రాంతాలు బాగా అభివృద్ధి చెందాలని ఆనాడు గాంధీ నెహ్రూ కలలు కన్నటువంటి పరిస్థితి. మీరు మరి దానికి భిన్నంగా చేస్తావురు, ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఇలా పరిస్థితి ఎట్లుందంటే పెట్టిపోయేనోడు పెయ్యల్లా బట్టి చూసినట్టు ఎన్నికలే జరిపేది లేదు. నువ్వు సర్పంచ్ల వ్యవస్థనే నిర్వీర్యం చేసినావు, పంచాయతీరాజ్ శాఖ గురించి మాట్లాడతావు. ఇంకా నువ్వు ఎన్నికలే పెట్టినప్పుడు ఆ పంచాయతీరాజ్ శాఖలో ఉన్నటువంటి గాంభీర్యం ఏందో ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. అదే జిల్లా మండల పరిషత్ మే 2024లో అయిపోయింది. ఇప్పటి వరకు ఆ ఎన్నికలు కూడా పెట్టే పరిస్థితి లేదు. ఇవాళ జడ్పీటీసీలు 538 మంది జడ్పీటీసీలు, 5817 మంది ఎంపీటీసీలు. మరి వాళ్ళను కూడా ఎన్నికలు పెట్టకుండా ఏ విధమైనటువంటి సంకేతం ఇస్తారు? మరి లేకపోతే రేవంత్ రెడ్డి గారు అనుకొని అన్ని రాజరిక పాలన లేక నామినేట్ సామంతరాజుల గుట్ల నియమించుకుంటారా అనేది ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఏమన్నా మాట్లాడడానికండి ఆ సంబంధిత మంత్రులకు సిగ్గుండాలి. ఏమన్నా మేము ఈ అసమర్థ మంత్రులుగా మిగిలిపోయే బదులు మేము ఆ పదవిని వదులుకుంటానన్న గౌరవం ఉంటుందేమనే ఇంతనైనా ఇంకిత జ్ఞానం లేదు. ఇవాళ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఎక్కడికక్కడ అభివృద్ధి కుంటుపడింది. మురికి కూపాలుగా గ్రామాలు మారినాయి. మంచినీళ్ళు రావడం లేదు, విద్యుత్ దీపాలు వెలగడం లేదు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు జీతాలు ఇవ్వడం లేదు. ఇలాంటి వ్యవస్థను ఏమైనటువంటి ప్రజలకు ఏ విధమైనటువంటి మెసేజ్ ఇస్తావో ఒకసారి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చేసుకోవాలి. तेलंगाना में नौ तश्कील शुदा इदारा हैड्रा ने अपने क़याम के 1 साल में जुमला 923 एकड़ अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ किया है और इन पर कब्ज़ाजात को बर्खास्त किया गया है। इस अराजी की जुमला मालियत 50,000 करोड़ रुपए तक बताई गई है। मिस्टर कमिश्नर हैड्रा रंगनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया। कमिश्नर हैड्रा ने बताया कि जिन अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है इनमें सरकारी ज़मीनात, झीलें, पार्क्स, नाले और सड़कें वगैरह भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हैड्रा ने जुमला 96 मुकामात पर कार्रवाई करते हुए 581 नाजायज़ कब्ज़ाजात को बर्खास्त करवाया है। उन्होंने बताया कि जुमला 424 सरकारी अराजियात, 233 एकड़ झीलों की अराजियात, 218 एकड़ सड़कों वगैरह का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। इसके अलावा नालों की 15 एकड़ और पार्क्स की 25 एकड़ अराजियात पर नाजायज़ कब्ज़ाजात को बर्खास्त किया गया है। मिस्टर रंगनाथ ने बताया कि सरकारी अराजियात, झीलों, पार्क, सड़कों और नालों के अलावा गैर कानूनी लेआउट्स पर भी कब्ज़ाजात की 5000 शिकायत मौसूल हुई थी।
जिनमें 75% की यकसुई कर दी गई। మోర్ దెన్ 95 డ్రైవ్స్ చేసాము. దాదాపు మనకి 900 పైన దీనికి ఇది ఐ జస్ట్ గివ్ దట్ డేటా 923 ఏకర్స్ దాకా రీక్లెయిమ్ చేయడం జరిగింది. సో దీంట్లో 96 డ్రైవ్స్, దీంట్లో 923 ఏకర్స్ అరౌండ్ విచ్ ఇస్ వర్త్ అబౌట్ 45,000 to 50,000 crores అన్నట్టు. ఓకే, సో ఈ దీంట్లో అన్ని రకాల ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ దీంట్లో మనం చూస్తే కనుక పార్క్ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ లేక్స్ కూడా మనం ఇప్పుడు లేక్స్ పునరుద్ధరణ చేస్తున్నాం. మనం ఒక 6 చెరువులు చేస్తున్నాము. దీంట్లో లేక్స్లో 105 ఏకర్స్ ఉండే చెరువుల్ని ఇప్పుడు 180 ఏకర్స్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఈ 6 చెరువులతో అంటే 75 ఎకరాలు పెరుగుతుంది అనమాట ఈ 6 చెరువులు. సో జస్ట్ ఒక 6 లేక్స్కి రీజునేషన్లోనే మన 75 ఎకరాలు పెరుగుతుందంటే అందులో మన దాదాపు మోర్ దెన్ 1200 లేక్స్ దాకా టోటల్గా ఉన్నాయి. సో వాటిల్లో మీరు చూడొచ్చు ఎంత మనం రీక్లెయిమ్ చేయొచ్చు అనేది కూడా. సో డెఫినెట్లీ మనకి కంప్లీట్ అయ్యేటప్పటికి ఈ రిజ్యునేషన్స్ ఇవన్నీ నోటిఫికేషన్స్ అయ్యేటప్పటికి మ్యాక్సిమం థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఏకర్స్ ఆఫ్ లేక్ ల్యాండ్ రిజ్యునేషన్ చేయడానికి కూడా పాసిబిలిటీ ఉందన్నట్టు. అండ్ సో దీస్ ఆర్ థింగ్స్. అండ్ ఇది టెక్నాలజీ సంబంధించి కూడా మీకు వీ హ్యావ్ గివెన్ ఎ నోట్. ఇదంతా కూడా వీ హ్యావ్ జిఐఎస్ వింగ్, అది కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఇచ్చేస్తున్నారు. అండ్ స్ట్రీమ్ అండ్ నాలా మ్యాపింగ్ కూడా మనం జరుగుతుంది. ఈ పబ్లిష్ చేస్తాం కూడా, ఎఫ్టీఎల్ది కూడా నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి పబ్లిష్ చేయటం మొదలెడతాము. అండ్ ఈవెన్ నాలాస్ది కూడా డైరెక్ట్ ఎఫ్టీఎల్తో పాటు మన నాలాస్ది కూడా మనకి డ్రైనేజ్ అది దానికి సంబంధించింది కూడా అది కూడా పబ్లిష్ చేయడానికి అది కూడా చేస్తాం. అది हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत के शनाख्ती कोड को TSA TG में तब्दील करने के फैसले के बाद हैदराबाद सिटी पुलिस ने अपनी गाड़ियों पर लगाए तेलंगाना स्टेट पुलिस के पुराने स्टिकर्स हटाकर अब नए तेलंगाना पुलिस स्टिकर्स लगा दिए हैं। पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद की हिदायत पर यह काम बड़े पैमाने पर अंजाम दिया गया। इस अमल के दौरान न सिर्फ स्टिकर्स की तब्दीली की गई बल्कि गाड़ियों की पॉलिशिंग, डेंटिंग और पेंटिंग भी की गई ताकि पुलिस की गाड़ियों को एक नया और मुत्तहदा रूप दिया जा सके। कुल 188 गाड़ियों पर तकरीबन 1,60,00,000 रुपये खर्च हुए। इनमें से 134 ई पेट्रोलिंग कारें नई शक्ल व सूरत के साथ दोबारा ड्यूटी पर रवाना हो चुकी हैं और पुलिस का कहना है कि ये अपडेट फोर्स को जदीद, यकसा और रियासत की नई शनाख्त TG के मुताबिक एक मुत्तहदा रूप देगा। तेलंगाना भर में फूड सेफ्टी हुक्काम की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। फूड सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए जुमला 55 पिज़्ज़ा आउटलेट्स पर धावे किए गए और वहां संगीन खामियों और नकाइस का पता चलाया गया। कहा गया है कि फूड सेफ्टी हुक्काम ने 18 पिज़्ज़ा हट आउटलेट्स, 16 डोमिनोज पिज़्ज़ा आउटलेट्स और 21 मुकामी पिज़्ज़ा आउटलेट्स और बेकरियों पर धावे किए गए। कहा गया है कि पिज़्ज़ा हट की 18 के मिन जुमला 8 आउटलेट्स में क़वानीन की खिलाफ वर्जियों का पता चला है। ये दावे GHMC हदूद में किए गए। कहा गया है कि लाइसेंस क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी की गई और वेजिटेरियन व नॉन वेजिटेरियन ग़िज़ाओं को एक ही साथ स्टोर किया गया था और हिफाजती उसूलों का कोई ख्याल नहीं रखा गया था। इसके अलावा खाजीपेट हनमकुंडा में अहदेदारों ने गंदी और ख़राब मशीनरी पाई गई जो पिज़्ज़ा तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। वरंगल में पिज़्ज़ा हट आउटलेट्स में किस तरह का फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था। इस तरह निज़ामाबाद में बर्तन वगैरह साफ नहीं थे। नलगुंडा में एक्सपायर शुदा सॉस की बोतलें भी दस्तयाब हुई। फूड सेफ्टी हुक्काम ने नकाइज वाली आउटलेट्स को नोटिस जारी की। याकुतपुरा में अवामी फलाह व बहबूद के काम का जायजा लिया गया। याकुतपुरा के रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज, MIM के कॉरपोरेटर्स और प्राइमरी यूनिट के अराकीन ने DRF हैदराबाद टीम की जारी नालों की सफाई और नक्कासी आब के कामों का जायजा लिया। जायजे में याकुतपुरा रेलवे ब्रिज, तालाब कट्टा, छोटा ब्रिज और हल्के के दाखिली नालों को शामिल किया गया, जहां नालों की सफाई के जरिए पानी की नक्कासी के मसाइल हल किए जा रहे हैं और ललिता बाग से आने वाले पानी के बहाव के लिए बॉक्स ड्रेन की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। इस मौके पर MLA ने लबैक होटल के करीब 4 लाख रुपए की लागत से CC रोड का काम का भी मुआयना किया। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में लबैक होटल के बाजू में एक छोटी सी CC रोड थी 4 लाख की, वो भी रोड का काम आगाज़ हुआ। इसके अलावा हम ख़ास आज
नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास क़यादत के अंदर मैं और मेरे साथ में याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के कारपोरेटर जनाब वासिफुद्दीन साहब, रेन बाज़ार अलमदार वाले जाई साहब, डबिलपुरा, डॉक्टर समीना मैडम, तालाब चिंचलम और दीगर मंजिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम एक्टिव वर्कर के साथ में जो नाला क्लीनिंग का काम चल रहा है, जो DRF हाइड्रा की टीम काम कर रही है, वो क्लीनिंग का एक पूरा डिटेल इंस्पेक्शन किया गया है जो DRF के ऑफिसरों के साथ में, जिसके अंदर जैसा आप देख रहे हैं कि याकूतपुरा रेलवे ब्रिज के बाजू से जो मेन नाले में मट्टी निकाली गई थी सिल्ट, उसका काटिंग का क्या हुआ वो देखना था। और जो विंड है, कमाना है, कमानों के अंदर की साफ़ सफाई के लिए वो देखा गया। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये तालाब कट्टे के ऊपर जो मेन नाला जा रहा है, छोटा ब्रिज है, वो सब की साफ़ सफाई का भी देखा गया। और उसके अलावा तालाब चिंचलम में जो छोटे नाले आ रहे हैं, अल्लाह का करम है कि याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी अच्छी डिसिल्टिंग हुई, नाला ओवरफ्लो के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। मगर ऊपर से जो पानी आ रहा है, जो दूसरे एरियो से जो पानी आ रहा है, वो पूरा पानी आके तालाब कट्टे रेलवे ब्रिज के पास से वहाँ की लोकेलिटी में, बस्तियों में जा रहा है। उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं ताकि ऊपर से भी अच्छे से डिसिल्टिंग साफ़ सफाई हो जाएंगी तो वो मसला भी हल हो जाएगा। और इसके अलावा जो मेजर प्रॉब्लम जहाँ से आ रहा ललिताबाग से पानी, उसको हम आइंदा बॉक्स ड्रेन का प्रपोजल डाल के कुछ ना कुछ उसका इंतज़ाम करने की नकीब मिलत और हबीब मिलत से ख़ास परमिशन लेके हम उस काम को आगाज़ कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ में जितने भी आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए हमारे बाल गोपाल साहब जो इंस्पेक्टर हाइड्रा के हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी निगरानी के अंदर याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है, नाला क्लीनिंग का ख़ास तौर से और डिसिल्टिंग का। और इसके साथ साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना में गैर कानूनी शराब की तिजारत और मुंतकिली के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इन्फोर्समेंट से ताल्लुक रखने वाले टीमों ने हैदराबाद और रंगारेड्डी जिले में गैर कानूनी शराब के खिलाफ कार्रवाई की और मुख्तलिफ मकामात पर धावे भी किए गए। कहा गया है कि इन धावों में तकरीबन 15 लाख रुपये मालियती गैर कानूनी शराब और दूसरी नशावर अद्वियात जब्त की गई। कहा गया है कि शमशाबाद में एक मुकाम पर हुक्काम ने धावा किया और वहां से बड़े ब्रांड्स की गैर कानूनी शराब की जुमला 125 बोतलों को जब्त भी कर लिया है। इसी तरह हैदराबाद के इलाके मुशराबाद में भी इन्फोर्समेंट हुकाम की जानिब से धावे किए गए और वहां जानी वॉकर ब्रांड की शराब की बोतलें जब्त की गईं। इस कार्रवाई के दौरान शराब की बोत तैयारी में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ अशिया का भारी जखीरा भी जब्त किया गया। मुतालिका हुकाम की जानिब से इन मामलात में मज़ीद कार्रवाई की जा रही है। तेलंगाना ग्राम पंचायत वर्कर्स यूनियन मंडल कमेटी के मुलाजमीन को गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। एहतजाज के तौर पर वर्कर्स ने MPDO ऑफिस के सामने धरना दिया और ऑफिस के टाइपिस्ट आदित्य को एक अर्जी पेश की। CITU मंडल सेक्रेटरी ने मुतालबा किया कि तमाम वर्कर्स की तनख्वाहें फौरी तौर पर अदा की जाएं, मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए, जॉब सिक्योरिटी फराहम की जाए, ESI और PF की सहूलत दी जाए और मसावी काम के लिए यकसान तनख्वाह दी जाए। मजीद ये कि दशहरा के त्यौहार के लिए वर्कर्स को कपड़े के 2 जोड़े, 2 जूते, नारियल का तेल और दस्ताने फराहम किए जाएं। CITU मंडल सेक्रेटरी यलैया ने इस एहतजाज को इनकलाब करार देते हुए वर्कर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। వీళ్ళు దుమ్ము ధూళి కరోనాను లెక్క చేయకుండా వాళ్ళ ప్రాణాన్ని ప్రాణంగా పెట్టి కూడక ఆనాడు కరోనా టైంలో మరి సఫాయి కార్మికులే ఇలా దేవుళ్ళు అని చెప్పి ఆ రోజు తాంబూలంలో పెట్టి మరి అట్లాగే కాళ్ళు గడిగి పూలదండలు వేసిండ్రు. మరి వీళ్ళకి ఎందుకు బోనస్ ఇస్తలేరు, వీళ్ళు పని చేస్తలేరు అని నేను ఇలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నా. వాళ్ళు రాత్రి 5 గంటలకు లేచి మరి రోడ్లు మోర్లు అన్నీ ఊడుస్తారు, మరి చెత్త చెదారము ఊడుచుకుంటూ శుభ్రం చేస్తున్నారు. ఇలా ఏదైనా ఉన్నదంటే పారిశుద్ధ కార్మికులు ఇలా 90% 95% ఉడక SC ST దళిత మహిళలే ఉన్నారు. మరి వాళ్ళకు దినదినానికి ఆరోగ్యం పెరిగేది, ఆయుష్ తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే దుమ్ము ధూళి మరి ఇలా మనం మన విసర్జన పోయినటువంటి మోర్లలో నీళ్లు ఉడక వాళ్ళకు వాసన కొట్టి ఇలా వాళ్ళ ఆరోగ్యము 60 సంవత్సరాలు బతికే వాళ్ళు ఇలా 30
డిమాండ్ చేస్తున్నా. మరి ఇలా రాజకీయ నాయకులు దాదాపుగా లక్షల్లో వెయ్యిలో జీతం తీసుకుంటున్నారు, కానీ ఇలా కనీస వేతనం ఇలా సుప్రీంకోర్టు 2016 అక్టోబర్ 26న ఒక తీర్పు చెప్పింది, సమాన పనికి సమాన వేతనము ఇవ్వాలని చెప్పింది. మరి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ వేతనాన్ని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నీరు గార్చే విధంగా ఇలా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం లేదు. తక్షణమే 26,000 రూపాయల జీతం ఇవ్వలేను నేను సిఐటిగా మరి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నా. ఒకవేళ ఈ 4-5 రోజుల్లో జీతాలు రాకపోతే కనుక మరి ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులందరము, మరి అట్లాగే రాష్ట్రంలో కూడా 50,000 కార్మికులు ఉంటారు. మరి 12,773 గ్రామ పంచాయతీలలో కూడా రేపు ధర్నా కార్యక్రమాలను చేపడతామని నేను ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తున్నా. आदिलाबाद रेड क्रॉस सोसाइटी को कलेक्टर की जानिब से अलर्ट की गई कीमती अराजी पर कब्जा करने की नीयत से नकली और जालसाजी के जरिए दस्तावेजात तैयार करने के इल्जाम में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तफसीलात के मुताबिक तामसी मंडल के गडगू गंगना, आदिलाबाद बोकलगुड़ा के वसीम कोकर, अलमारूफ वसीम रमजानी और डॉक्यूमेंट राइटर एरला राजू ने सन 2015 में उस वक्त के कलेक्टर के दस्तखत जाली तौर पर तैयार करते हुए फर्जी दस्तावेजात बनाए, बादअज़ा म्युनिसिपल टैक्स भी अदा किया और वसीम कोकर के नाम पर पट्टा हासिल करने की कोशिश की। इस सिलसिले में आदिलाबाद डीएसपी जीवन रेड्डी ने अपने चैम्बर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कलेक्टर के दस्तखत जालसाजी करके सरकारी अराजी पर कब्जा करना संगीन जुर्म है। इब्तदाई तहकीकात में पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन जब्त किए। डीएसपी ने इंतबाह दिया कि अगर कोई भी शख्स जाली दस्तावेजात के जरिए सरकारी या खानगी जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा। इन वसीम कोकर अलियास रमजानी 2022 में ये लैंड गंगाना से इन सेल डीड रजिस्ट्रेशन करा। गंगाना वेंडर है वेंडी कोकर, डॉक्यूमेंट नंबर 1325/22 करने के बाद में इसके वसीम कोकर के नाम पे वो म्यूटेशन भी कराया म्यूनसिपाल्टी में। हमारा इन्वेस्टिगेशन में पूरा मालूम हो गया ये गवर्नमेंट का वैल्यूएबल प्लाट को कब्जा करने के लिए लैंड ग्रैबर्स प्री प्लान्ड एक गंगन्ना के ऊपर पहले अलर्ट हुआ जैसा वीकर सेक्शन में अलर्ट हुआ जैसा कलेक्टर साहब का फेक प्रोसीडिंग्स प्रिपेयर करके वसीम कोकर ये लैंड इसके नाम पे रजिस्ट्रेशन करा, इसको कब्जा करके बेचने के लिए उन्होंने ट्राई करा। ये दोनों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट राइटर ईर्ला राजू उन्हें हेल्प करा। इन्होंने बिना वेरीफाई विदाउट लिंक डॉक्यूमेंट्स इन गवर्नमेंट का प्लाट को डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रजिस्ट्रेशन कराया इसका पर्सनल बेनिफिट के लिए। इसलिए डॉक्यूमेंट राइटर ईर्ला राजू भी हमें केस में इन्वॉल्व करा। हमारा अपील क्या है बोल तो डॉक्यूमेंट राइटर रजिस्ट्रेशन करते टाइम में थोड़ा वो प्लाट्स का उन्दो अग्रिकल्चर का उन्दो लिंक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना एंड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रहे तो नहीं करना। अभी आप मिसगाइड करके गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करें तो डॉक्यूमेंट राइटर भी क्रिमिनल केसेस में फंस जा रहे। म्यूनसिपल अधिकारी ऑफिसर्स भी विदाउट वेरिफिकेशन इसको हाउस नंबर दे दिया। इसमें एक्चुअली प्लाट में वो वेकेंट लैंड है, इसमें कोई हाउस कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, फिर भी इसका हाउस नंबर मिल गया। हमारा अपील क्या है बोलते हो रजिस्ट्रेशन करते टाइम में रजिस्टर ऑफिस पूरा लिंक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना, वो प्लाट का फ़ोटो भी लेना। अगर फ़ोटो लिए तो भी वो ज़मीन कहाँ का है, गवर्नमेंट है प्राइवेट है, वो मालूम हो जाता। ये रूल है एक्चुअली रजिस्ट्रेशन करते टाइम में वो प्लेस का फ़ोटो भी कंपलसरी लेना। हमारा अपील पब्लिक क्या है बोल तो कोई लैंड ग्रैबर्स ऐसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नहीं तो कोई जेन्युइन विक्टिम का प्रॉपर्टीज को कब्जा करे तो पुलिस को कंप्लेंट दे दो। लैंड ग्रैबर्स को हम पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शंस लेके जेल को भिजाने के लिए हम ट्राई करेंगे। थैंक यू। आदिलाबाद डिवीजन में पुलिस ने गांजे की गैर कानूनी काश्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस साल अब तक 18 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं और 166 अफराद को गिरफ्तार किया गया है।
डीएसपी जीवन रेड्डी ने मीडिया को बताया कि जिले भर में कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है और अगर किसी की जमीन पर गांजे की काश्त पाई गई तो न सिर्फ काश्तकार बल्कि जमीन के मालिक को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हाल ही में बाजार हथनूर के टंबी गांव में इंकशाफ हुआ कि कपास की फसल के दरमियान 60 गांजे के पौधे उगाए गए थे, जिन्हें फौरी कार्रवाई में जब्त कर लिया गया और काश्तकार अनिल के साथ जमीन के मालिक समीला खान को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने वाज़ेह किया कि मुस्तकबिल में ऐसी सरगर्मियों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस साल में आदिलाबाद डिवीजन पुलिस टोटल 81 गांजा केसेस रजिस्टर करा। इसमें 166 गांजा ऑफेंडर्स को अरेस्ट करा। टोटल सीज्ड गांजा 8 kgs 135 ग्राम्स वर्थ रुपीज़ 24,33,000 वर्थ रुपीज़ गांजा सीज करा। हमारा नया एसपी श्री अखिल महाजन IPS साहब आने के बाद पूरा ये केसेस बुक हो गए। इसमें गांजा पोजेशन, सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पोजेशन, कल्टीवेशन पूरा मिलके ये केसेस है। हम गांजा कल्टीवेशन बहुत सीरियस क्राइम है। कोई आदमी ओन लैंड में कल्टीवेशन करे तो भी केस होता एंड गवर्नमेंट सहायता से रैतु भरोसा नया था, रैतु बीमा भी नया था। अगर ओनर दूसरों को लीज दे के और लीज लिए सो आदमी भी लीज लैंड कल्टीवेशन करते टाइम में इसमें गांजा प्लांट्स कल्टीवेशन करे तो वो लीज लिए सो आदमी के ऊपर केस होता, ओनर के ऊपर भी केस हो रहा है। ओनर एवरी टाइम मालूम करना इसका खेत में कौन सा क्रॉप कल्टीवेशन कर रहा है, ये ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर लीज लेस आदमी लैंड को मिसयूज करके गांजा कल्टीवेशन करे तो लीज होल्डर एंड ओनर आल्सो लायबल फॉर द गांजा ऑफेंस। हम ऐसा ओनर्स भी केस में डाल के अरेस्ट कर रहे हैं। एंड हमारा अपील क्या है बोल तो गांजा इज़ वेरी सीरियस क्राइम। कोई भी जिला में गांजा कल्टीवेशन नहीं करना, पोजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंजम्पशन भी नहीं रहना। कोई इन्फॉर्मेशन है तो पुलिस को इंटीमेशन दे दो। आप इंटीमेशन जैसे हो नाम सीक्रेटली मेंटेन करके हम इसको अरेस्ट करते। हमारा डिस्ट्रिक्ट से गांजा को पूरा निकाल देंगे। गांजा ऑफेंडर्स के ऊपर, पेडलर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ले रहे हैं। थैंक यू। रेलवे पुलिस हैदराबाद ने आज 23 सितंबर की सुबह फतेहनगर रेलवे स्टेशन पर एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया जो कत्ल के मुकदमे में मुलविस था। मुलजिम का नाम पथलावाद रवि, 35 साल, पेशा मजदूर और रिहायशी बाला नगर हैदराबाद बताया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 18 सितंबर को हाईटेक सिटी स्टेशन पर राजेश से मिला और झगड़े के दौरान इसे कत्ल कर दिया। इब्तिदाई तहकीकात में मालूम हुआ कि तनाज़ा दौरान शराब पीने और माली लेन देन से पैदा हुआ। पुलिस ने मुलजिम से एतराफ़ी बयान कलमबंद किया और इसके कब्जे से एक खून आलूदा रुमाल और एक मोबाइल फोन बरामद कर लिया। मुलजिम की गिरफ्तारी में IRP हैदराबाद प्रवीण कुमार और IPF लिंगमपल्ली समेत दीगर अहलकार शामिल थे, जबकि आला पुलिस हुक्काम ने कार्रवाई को सराहा और अहलकारों को इनाम देने का ऐलान किया। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। 27 सितंबर तक तेलंगाना भर में हो सकती है बारिशें। गुज़िश्ता रोज हकीमपेट में दीवार गिरने से कई गाड़ियां शदीद नुकसान का शिकार। DRF ने बुजुर्गों व हामिला ख़वातीन को महफूज मुकामात तक पहुंचाया। मजालिस मुकामी इंतखाबात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जल्द ही जियो की इजराई का इम्कान। हुकूमत ने तमाम तैयारियां कर ली मुकम्मिल। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जिले मुलुगु का किया दौरा और मेडारम जात्रा के इंतजामात का लिया जायजा। समक्का मंदिर में की पूजा, 67 किलो के सोने के जेवरात किए पेश।
हाइड्रा ने 50,000 करोड़ रुपए मालियती 923 एकड़ अराजियात का तहफ्फुज किया, कब्जे किए बर्खास्त। कमिश्नर हाइड्रा एवी रंगनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद पुलिस ने गाड़ियों के स्टिकर्स TS से TG में कर दिए तब्दील। पॉलिशिंग, डेंटिंग व पेंटिंग, कुल 188 गाड़ियों पर 1.6 करोड़ रुपए खर्च। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।